میاں نواز شریف کو نون لیگ کا صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف دوبارہ پارٹی کی قیادت کریں گے۔ نواز شریف کو سازشی جوڈیشل آرڈر کے تحت صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو۔ مزاحمت یا مفاہمت کا بیانیہ وہی ہے جس کا آرڈر میاں نواز شریف دیں گے۔ نون لیگ میں رائے کے اظہار میں کوئی قدغن نہیں۔ شہباز شریف نے کوئی بھی کام نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی پرائم منسٹر نے اپروول جو ہے وہ اپنا قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے نہ لی ہو۔ میاں شہباز شریف صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں، ان کی مصروفیات بھی ہیں، اور کیونکہ الیکشن کے بعد اب ہم نے جس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کو نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ متحرک کیا جائے۔ جب کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو کولیشن پارٹنرز کے درمیان ایک علیحدہ ایجنڈا، ایک مینیفیسٹو، ایک پالیسی طے ہوتی ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کی پالیسی جو ہے وہ طے ہو جائے، کولیشن پارٹنرز کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اسمبلی میں چیف وپ رانا شہباز وزیر خوراک کے ایوان کو مطمئن نہ کرنے پر مایوس۔ گندم خریداری کے معاملے پر پیر کے روز سے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات لیاقت علی کی اس رپورٹ میں دیکھیں۔ سنی اتحاد کونسل کے چیف وپ رانا شہباز کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہنے لگے ہماری جماعت گندم کی خریداری کے معاملے پر ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ کاشتکاروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پیر کے روز سے باقاعدہ تحریک شروع کی جا رہی ہے۔ سنی اتحاد میں ایم پی اے شامل ہوئے ہیں، انہوں نے کل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا کہ وزیر خوراک جو ہیں یہ گندم نہیں لینا چاہ رہا ہے، ان کا رویہ جو ہے عوام کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آج سنی اتحاد نہیں جائے گی اسمبلیوں کے اندر۔ رانا شہباز نے مزید کہا کہ وزیر خوراک بلال یاسین ایوان کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اپوزیشن کے ساتھ حکومتی اراکین نے بھی اس پر احتجاج کیا۔ سندھ میں پنجاب سے 700 روپے فی من زیادہ میں گندم خریدی جا رہی ہے۔ گندم کے اوپر اجلاس ہوا جس میں وزیر خوراک بلال یاسین صاحب پورے ایوان کو مطمئن نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے زمیندار سے گندم لینے کی، کسان سے گندم لینے کی، ہم صرف 36 بوریاں دیں گے، باقی ہم گندم نہیں لیں گے۔ اور اس وجہ سے تمام ایوان نے احتجاج کیا، حکومت کی طرف سے بھی لوگوں نے کیا، اپوزیشن کی طرف سے بھی کیا۔ یہ صوبہ سندھ دیکھ لیں، وہاں پر ہم سے 700 ریٹ زیادہ ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما رانا شہباز کا یہ بھی کہنا تھا کہ گندم کے کاشتکار کے خلاف حکومت کی ظالمانہ پالیسی پر پیپلز پارٹی سمیت تمام کاشتکار گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ گندم خریداری کا بحران۔ پنجاب اسمبلی میں دوسرے روز بھی گندم کی خریداری پر گرما گرم بحث جاری۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ دیگر ارکان کا کہنا تھا کہ حکومت آئندہ بجٹ میں بے روزگاری اور غربت کے خاتمے پر توجہ دے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت جمعہ کو بھی 2 گھنٹے 20 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ گندم کی خریداری اور قیمت پر گرما گرم بحث۔ اسپیکر نے کہا کہ گندم کی قیمت 3900 روپے مقرر کی گئی ہے، مگر 3200 روپے من فروخت ہو رہی ہے۔ کسان کے اربوں روپے مڈل مین کے پاس پڑے ہیں۔ گنے کے کاشتکاروں کا بھی تحفظ کیا جائے۔ وزیر زراعت عاشق کرمانی نے کہا کہ ہم یہ معاملہ کین کمشنر کو ارسال کریں گے۔ کپاس کی پیداوار میں کمی نہیں آئی، ادویات اور کھاد پر قانون سازی کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے پیش کی بحث کے دوران کہا، حکومت بجٹ کی بھرپور تیاری کرے، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ اور IT کو فوکس کیا جائے۔ لوگوں کو حکومت پر اعتماد نہیں، وہ ٹیکس دینے سے گریز کرتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بڑھائی جائے۔ اسمبلی اجلاس میں رکن جنید افضل نے کہا کہ گندم کے کاشتکار کو پیسے نہ ملے تو وہ سڑک پر آ جائے گا۔ گندم کی قیمت کاشت کے وقت مقرر کی جائے۔ نیو MPO ہاسٹلز کے لیے مختص فنڈز بھی کسانوں پر لگا دیے جائیں۔ سر جس ٹائم پہ گندم لگائی جاتی ہے ویسے تو سپورٹ پرائس اس ٹائم پہ اناؤنس کرنی چاہیے تاکہ کسان اس ٹائم پہ ایویلیویشن کر لے کہ مجھے کس ریٹ پہ یہ وارے آتی ہے۔ اگر اس سپورٹ پرائس پہ میں نے بائی کمپلشن اسٹیٹ کو بیچنی ہے یا اس سے کم پہ بیچنی ہے تو وہ یہ کام کرے ہی نہ لگانے والا گندم کو۔ DC فیصل آباد کے گھر کی تعزین و آرائش کے لیے 7.5 کروڑ روپے 2 مہینے کے فنڈ کے اندر رکھا گیا سر۔ جناب اسپیکر مجھے بتائیے کہ اگر اس کے گھر کی رینوویشن نہیں ہوگی تو کیا DC صاحب کام نہیں کر سکیں گے یا مر جائیں گے؟ لیکن اگر غریب کسان کو اس کی محنت کا پیسہ نہ ملا تو وہ ضرور مر جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان نے تحریک التواء کار پر اپنے حلقوں کے مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس سوموار کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔
लाहौर में स्मोक के मुकम्मल तदारुक का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ेरे ज़मीन पानी के बचाव के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना है कि शॉपिंग बैग्स के नुकसानात बारे आवाम को आगाही फराहम करना ज़रूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बढ़ती माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का मसला परेशानी का बाइस। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ेरे ज़मीन पानी के बचाव के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कार्रवाइयाँ करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग बैग्स के नुकसानात पर आवाम को आगाही फराहम करना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर शॉपिंग बैग्स के हवाले से कोई पॉलिसी बनाए। अदालत ने मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा कि पानी ज़ाया करने वालों को 1 लाख रुपए जुर्माना करें। अदालत ने स्कूल्स में सफाई आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी और करार दिया कि घर आपका वो नहीं जहां आप रहते हैं, ये सारा मुल्क हमारा घर है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी और LDA के वकील को जौहर टाउन में कैफेज के क़याम और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर हुक्म इम्तनाही खत्म करवाने के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत की है। लाहौर हाईकोर्ट ने बीवी की इद्दत पूरी किए बगैर उसकी बहन से शादी करना गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से पहले उसकी बहन से शादी करना 2 बहनों को बैक वक्त निकाह में रखने के मुतरादिफ है। अदालत ने इद्दत पूरी किए बगैर खातून की सगी बहन से शादी करने वाले मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। बीवी के इद्दत पूरी किए बगैर उसकी बहन से शादी करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुलजिम मुसव्विर हुसैन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक एक शख्स 2 सगी बहनों को निकाह में नहीं रख सकता। इस्लामी फ़िक़ा और वफाकी शरई अदालत के फैसले के मुताबिक एक औरत इद्दत का दौरानिया मुकम्मल होने तक रिश्ता अज़दवाज में रहेगी। फ़ुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक शख्स पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता। कोई भी शख्स अपनी पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने के बाद उसकी दूसरी बहन से शादी कर सकता है। मज़कूरा शादी बातिल की बजाय फासिद तस्लीम की जाएगी, मगर यह भी काबिल सज़ा जुर्म है। ये सूरत हाल 2 बहनों को एक ही वक्त में निकाह में रखने के मुतरादिफ है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसले में ये भी लिखा कि मियाँ बीवी पर लाजिम है कि फासिद शादी के बारे में मालूम होते ही दोनों फौरी तौर पर एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, वरना काजी की जिम्मेदारी है कि उन्हें अलहदा करे और उनकी शादी को खत्म करे। अदालत ने फैसले में मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार मुसव्विर हुसैन ने दौरान तफ्तीश पुलिस को अपनी तलाक से मुतल्लिक मुसद्दका कागजात भी मुहैया नहीं किए। अगस्त 2023 को साबिर अली नामी शख्स ने अपने बहनोई मुसव्विर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि मेरे बहनोई ने मेरी बड़ी बहन से शादी के बरकरार रहते हुए मेरी छोटी बहन से शादी कर ली। मुलजिम मुसव्विर हुसैन ने पुलिस को दौरान तफ्तीश बताया कि उसने पहली बीवी को तलाक देने के 9 दिन बाद उसकी दूसरी बहन से शादी की, लिहाजा उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा गैर कानूनी है। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद इद्दत पूरी किए बगैर खातून की सगी बहन से शादी करने वाले मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। महंगाई कंट्रोल करने के तमाम इकदाम बेसुध सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के नर्ख में इजाफे का सिलसिला थम ना सका। शहरी कहते हैं आमदनी वही पुरानी है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा थम न सका। सरकारी रेट लिस्ट भी आवाम की दस्तरस से बाहर। मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से 7 सब्जियों की कीमत में इजाफा। टिंडे देसी 10 रुपए महंगे 230 रुपए मुकर्रर, ताहम मार्केट में 380 रुपए किलो तक फरोख्त। मेथी भी 10 रुपए बढ़ाकर 85 रुपए किलो मुकर्रर, ताहम 120 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। बैंगन 80 रुपए की बजाय 120 रुपए, अरवी 220 रुपए की बजाय 350 रुपए फी किलो बेची जा रही है। मटर 175 रुपए की बजाय 250 रुपए, घिया कद्दू 95 रुपए की बजाय 140 रुपए तक दस्तियाब है। ब्रायलर गोश्त 612 रुपए फी किलो और अंडे 237 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार। सब्जी मंडी में आए खरीदार कहते हैं इनकम महदूद और बढ़ती कीमतों से महंगाई लामहदूद हो चुकी है। 500 रुपया दिहाड़ी है, ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਵੀ ਦੂਣੇ ਤੀਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਅਨਿਤਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। गरीब आदमी क्या खा सकता है, ये तो महंगाई ऐसे ही है। रोटी तंदूर पे कह रहे हैं सस्ती कर दी है, जाते हैं मिलती नहीं है। मंडी में आते हैं चीज़ें कह रहे हैं सस्ती हैं, दुकानदार देता नहीं है। जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है वो 200 रुपये का किलो प्याज ले जाएगा, आटा कहाँ से लेगा, चीनी कहाँ से लेगा, घी कहाँ से लेगा। उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम्स तो हैं ना।
सरकारी रेट लिस्ट में फलों के दाम मुस्तहकम होने के बावजूद फल अवामी कुव्वत खरीद में ना सके। बाजार में सेब काला कुल्लू 350 रुपए, स्ट्रॉबेरी 160 रुपए, खरबूजा 150 रुपए फी किलो, जबकि केला दर्जावल 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश है। गर्मी का जोर टूट गया है। टाउनशिप, गड़ी शाहू, मॉल रोड, समनाबाद, गुलबर्ग में बारिश हो रही है। मजीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी बिल्कुल, लाहौर में मौसम ने अभी अचानक अंगड़ाई ली है और तेज़ हवा और गरज चमक के साथ लाहौर में तेज़ बारिश हुई है और इससे मौसम तो खुशगवार हो गया। लोग जो शहरी हैं जो वो एंजॉय करने की सड़कों पर भी निकल आए हैं। तमाम दूसरी तरफ पीडीएम ने भी जो उन्हें वार्निंग दी है शहरियों को कि लाहौर में चूँकि लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में चूँकि बारिशें हो रही हैं और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। इसके अलावा उन्होंने कहा, जो पीडीएम ने वार्निंग दी है कि वो आसमानी बिजली गिरने का भी ख़तरा है, इसलिए जो खुले आसमान तले ना जाया जाए। इसके अलावा जहां पानी खड़ा है या खंबे और तारों से दूर रहें। और महकमा मौसमियात ने भी पेशीन गोई की है कि ये 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक जो पंजाब भर, लाहौर समेत पंजाब भर में जो है तेज़ बारिशें और बिजाला बारी का इम्कान है। इसमें यहाँ बताता चलूँ कि लाहौर में जिन इलाकों में बारिश हो, इनमें जेल रोड है, इसके अलावा एयरपोर्ट है और इसके अलावा लक्ष्मी चौक, अपर माल है। इसके अलावा जो है वो जो समनाबाद, लामा इकबाल टाउन और दीकर इलाके हैं जहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और सड़कों पर पानी भी खड़ा हो गया है। और ताहम जो लाहौरिये हैं वो तो रह नहीं सकते और उन्होंने मुख्तलिफ जो दुकानें हैं जैसे पकौड़ों की और दीगर दुकानों का रुख भी किया है और मौसम की मुनासिबत से उन्होंने खाने भी खाने शुरू कर दिए हुए हैं। जबकि कुछ लोगों ने तो मेहमान नवाजी के लिए भी लोगों को अपने घरों में इनवाइट कर लिया और कुछ लोग दूसरों के घरों में मौसम एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो हम दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ जो चूँकि गंदम का सीज़न है तो ये गंदम की फसल के लिए और गंदम की कटाई इस वक्त चूँकि हो रही है, उस हवाले से ये मौसम जो है वो इंतहाई नुकसानदेह है जो गंदम के लिए। और ये कहा जाए कि लाहौर में इस वक्त बाग जनाब में यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ भी ये सूरत हाल ये है कि तेज़ बारिश के बहस जो है ना वो पानी जगह जगह पे खड़ा हो गया है और निशेबी इलाके तो काफ़ी हद तक ज़ेरे आब आ गए हैं और गरज चमक का सिलसिला अभी तक जारी है। मेरे महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आज रात तक और कल और 29 तारीख तक जो है ये बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। और ये यहाँ जो कहा जाए कि जो एक मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसमें मुख्तलिफ जो मिलीमीटर के हिसाब से बारिश हो रही है। किसी इलाके में कम बारिश है तो किसी में ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम निशेबी इलाके तो कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। तो हम इसके अलावा पोश एरिया में भी काफ़ी हद तक सड़कों में पानी खड़ा है। लोग जो सड़कों पर निकल आए हैं अपनी गाड़ियों पे वो तो मौसम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मोटरसाइकिल सवार हैं जो पैदल हैं उनके लिए काफ़ी दुश्वारी का उन्हें सामना है। इसी तरह जो जिन इलाकों में अभी आज कल से गर्मी का मौसम था वो अब काफ़ी हद तक मौसम बदल गया है, मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है। जी।